My name is Tony Jones Nongklao, assistant teacher of Lai Nang Klong Government Lower Primary School on the Mawson Ram Block, East Khasi Hills, Meghalaya. I have received a national award from Zero Investment Innovation for Education Initiatives for my innovation ideas, and my innovation ideas name is Daily Experience Through Nature. So first of all, I give thanks to my Almighty God for guiding, leading, and giving me this opportunity to kindly present my short presentation. I would like to thank the ZIIEI and TIA programs of Sri Aurobindo Society for selecting my ideas and giving me this honor and award. I would like to thank the HDFC Bank, Parivartan, for kindly supporting us in the field of education for how to improve the quality of education system in India. So I came to know about ZIIEI through Sir Vishal Pachori in a one-day workshop. Within a short time, regarding with my selected ideas, I would like to share a few more steps and explanation in which these activities can be implemented in all classes by providing hands-on experience or self-experience in different learning topics, in which to develop a sense of a child for how to love our mother nature. As I have said, the name of my innovation is Daily Experiment Through Nature. For example, how to conserve or how to save water. One activity in which I use is only available materials, especially in rural areas, in which people earn their livelihood by cultivating or agriculture. So how to save water, especially for people who don't have water proper connection or proper water supply. First, I take a local cone, about 1 meter or 2 meter big polythene, and a string, where you can tie a string at the end of a polythene and then put inside a cone, and again tie the remaining polythene at the top of the cone, and then you can pour water on it, and then you keep in a corner. That's the way you can save water. Another activity is to take the children outside the classroom to see the beautiful surrounding, and for how to utilize them, like instead of buying a new broom, help a child to make a broom from a small bamboo branches and leaves. And another activity for how to reuse, the reuse of blank backside waste question papers, calendars, etc., by providing them to students and ask them to draw, to paint, like a scenery, vegetables, fruits, etc., and paste them on a wall to beautify the classroom. So these activities involves a practical applications which improve the learning outcome of a child, and to develop a sense of how to love and to respect for our mother nature. So last but not the least, again, I would like to thank the ZIIEI program of Sri Aurobindo Society and the HDFC Bank, Parivartan, for supporting us, and hope that this program
It will bring a change and a transformation in the field of education in India. So viewers, if you like my ideas and you want to know more about different ideas, please like and subscribe the ZIIEI channel on the YouTube. So thank you and stay safe. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কুইন দেৱী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমেই আপোনালোকক এটি প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ, আপোনাৰ প্ৰিয় শব্দ কি? ভাবকচোন এবাৰ। হয়, আমি পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিকে যদি সোধোঁ যে আপোনাৰ প্ৰিয় শব্দ কি, তেনেহ'লে এটাই উত্তৰ ওলাব, মা। এগৰাকী মাক এটি শিশুৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। মাকগৰাকী শিশুটিৰ প্ৰথম শিক্ষয়িত্ৰী। মাকৰ জৰিয়তে এটি শিশু আগবঢ়াত সহায় হয়। গতিকে মোৰ আইডিয়া মমছ মেজিক অৰ্থাৎ মাৰ যাদুৱে ইয়াকে ক'ব খোজে যে আমি মাতৃগৰাকীক যদি আগবঢ়াই নিওঁ তেনেহ'লে শিশুটি নিজে নিজে আগবাঢ়িব। কেনেকৈ? প্ৰথমে আমি কৰিব লাগিব কি, বিদ্যালয়ৰ যিখিনি আগবঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক বাছনি কৰিব লাগিব। কেৱল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, কাৰিকুলাৰ আৰু কাৰিকুলাৰ সকলো এক্টিভিটিতে, যেনে খেলা ধূলা বা নাচ গান, ব্যৱহাৰ, ল'ৰাটিৰ কবিতা আবৃত্তি, আকস্মিক বক্তৃতা, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ডত যিসকল শিশুৰ দক্ষতা আছে সেইসকল শিশুক আমি বাছনি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মাকসকলক নিমন্ত্ৰণ দিব লাগিব। এখনি অভিভাৱক সভা পাতিব লাগিব আৰু সেই অভিভাৱক সভাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বক্তব্য দিয়াৰ এটি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। ইয়াৰ জৰিয়তে সেই মাকগৰাকীয়ে শিশুটি সৰুতে কেনেকুৱা আছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আছিল, কি কি কৰিছিল, কেনেকৈ কষ্ট কৰিছিল, কেনেকৈ আগবাঢ়িছিল, এই গোটেইখিনি কোৱাৰ সুবিধা পাব। এনে কৰিলে কি হ'ব, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোক উৎসাহিত হ'ব, লগতে মাতৃসকলো উৎসাহিত হ'ব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শুনি আছে সেই শুনি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো লগতে উপকৃত হ'ব পাৰিব। মোৰ আইডিয়া মমছ মেজিকটো চিলেক্ট কৰাৰ বাবে, নেশ্যনেল এৱাৰ্ড হিচাপে গণ্য কৰাৰ বাবে মই আটাইতকৈ বেছি ZIIEI লগতে HDFC বেংকক অন্তৰেৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशिक हुसैन वार, प्राइमरी स्कूल खाकदजी, जोन मावर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। रिसेंटली नेशनल अवार्ड मुझे मिला है फॉर जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस। मेरी पोस्टिंग जिस स्कूल में हुई वो एक फार फ्लंग एरिया में था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहां पे। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी मुझे लगी वहां पे, वो हेल्थ एंड हाइजीन की थी। बच्चे स्कूल कम आते थे, सफाई का कम ख्याल रहता था उन्हें, तो अक्सर वो बीमार होते थे। तो मैंने सोचा कि इस स्कूल में मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो यही है, मुझे इस फील्ड में काम ज्यादा करना है। तो मैंने थोड़ी सी कुछ कोशिश की, आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मैंने एक खेल खेला। खेल कैसे मैंने खेला? मैंने एक एक्टिविटी की। मैंने ड्राइंग शीट पे विद बोल्ड लेटर्स मैंने लिखा बी क्लीन सी मैजिक। तो बच्चों से कहा मैंने कि बच्चों आपको साफ रहना है, मैं हर हफ्ते आपकी सफाई चेक करूंगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने एक डायरी मेंटेन की। डायरी मेंटेन करके मैं उसमें हर हफ्ते बच्चों की सफाई चेक करता था और बच्चों को मार्क्स देता था मैं। तो महीने के आखिरी दिन, क्योंकि वो हाफ डे होता था,
तो सेकंड हाफ में मैं वो डायरी ला के एनालाइज करता था कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं इस मंथ के। तो वो डायरी टोटल करके मैं उस बच्चे का नाम लिखता था उस ड्राइंग शीट पर विद बोल्ड लेटर्स। ये उस सारी प्रोसेस जो होती थी इन द एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे घर में होते थे, उनके एब्सेंस में ये सब कुछ होता था स्कूल में। तो विद बोल्ड लेटर्स में उस दीवार पर उनके नाम लिखता था। बच्चे जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो टॉप पर, उससे कम, उससे नीचे 2-4 बच्चों के नाम लिखता था मैं। 5th प्राइमरी से कौन है, 4th प्राइमरी से में से कौन है, इसी तरह से क्लास वाइज एक बच्चे का नाम, हर क्लास में से एक बच्चे का नाम मैं उस लिखता था उस पर। तो बच्चों से कहा जाता था कि आप जब सुबह आओगे तो यहाँ पे आप कुछ जादू देखोगे। तो क्यूरियोसिटी रहती थी बच्चों में कि क्या हम आके हमें सर क्या जादू दिखाएंगे वहां पे। तो वो जब सुबह आते थे, जो ही स्कूल का दरवाजा खुलता था, वो आते थे तो दीवार पर बोल्ड लेटर्स से 4-5-6 बच्चों का नाम होता था वहां पे। और कभी कभार मैं उनके फोटोग्राफ्स भी उस पर लगाता था। तो ज्यादा ही खुशी होती थी बच्चों को। जो बच्चे अपने नाम वहां पे पाते थे तो वो तो बेहद खुश होते थे, और जो बच्चे वहां पे अपना नाम नहीं पाते थे तो वो भी, उनमें भी वो शौक बढ़ता था कि नेक्स्ट वीक मेरा नाम होना चाहिए इस जादू की पट्टी में, अब मेरा नाम होना चाहिए। वो कोशिश करता था। फिर नेक्स्ट मंथ वो सफाई की तरफ खूब ध्यान देता था। तो इस तरीके से मेरा जो मकसद था कि हेल्थ एंड हाइजीन का, वो प्रॉब्लम हल हो ही गई कि बच्चे साफ आने लगे। तो सफाई के साथ साथ उनका सेहत भी ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ मेरा एक और जो टारगेट था, जो मैं वो भी हासिल हो गया मुझे। वो ये था कि अटेंडेंस जो थी वो कम रहती थी इस स्कूल में, तो अटेंडेंस भी इससे इम्प्रूव हो गई। क्योंकि अब बच्चे शौक से आने लगे कि अगर मैं किसी दिन घर में बैठा, अगर मैं किसी हफ्ते घर में बैठा, सर चेक करेगा, वहां पे मार्क्स मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, मेरे कम हो जाएंगे, मैं टॉप में नहीं जाऊंगा, मैं बॉटम में जाऊंगा। इस तरीके से ये बच्चों में ये थोड़ा वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो स्कूल आने लगा। गैर महसूस तरीके से मैंने ये एक्टिविटी की। तो फिर क्या हुआ कि श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रोग्राम चलता था। मैं नहीं जानता था उन दिनों श्री अरबिंदो सोसाइटी कोई सोसाइटी है। तो इनका एक ट्रेनिंग सेशन हुआ हमारे जून में। तो वहाँ पे उनके वो आरपी थे हामिद सर। तो उनकी वसादत से मैं भी जब वहाँ पे पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि किसी ने कोई खास काम तो नहीं किया है अपने स्कूल में। अब मैं भी उठा, मैंने भी थोड़ा सा बताया कि मैंने भी छोटा मोटा काम किया है मैंने। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मेरे छोटे काम की सराहना की गई और ये नेशनल लेवल तक गया ये आइडिया मेरा, बी क्लीन सी मैजिक। और ये नवाचार जो बुकलेट है उनकी, उसमें भी छप के आ रहा है। तो मैं फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ श्री अरबिंदो सोसाइटी का, इनके साथ साथ HDFC बैंक का भी, कि इनकी वसातत से हमारे इस छोटे आइडिया को इन्होंने पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। यही इस शायर से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब तक बिके न थे कोई पहचानता न था, जब तक बिके न थे कोई पहचानता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार भारत, मेरा नाम मीनाक्षी दर है। कश्मीर के उत्तरी छोर में एक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक ज़िला आता है कुपवाड़ा। मैं कुपवाड़ा के ही एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है GPS ब्रह्मली, जो कि जोन दरगमूला डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पढ़ता है। मैं 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी एक सोच है कि आप बच्चों को तभी ठीक से पढ़ा सकते हो जब आप बच्चों को खेल खेल में पढ़ाओ। बच्चा भी तभी
खुल के आपके साथ पढ़ता है, आपका पढ़ाया हुआ पाठ याद रखता है जब आप खेल खेल में उसे पढ़ाएं। तो मेरी इसी सोच ने एक नए नवाचार को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा लर्निंग थ्रू मेडिटेशन। और मैंने इस खेल में इनाम भी जोड़ दिया जिसकी वजह से जो छात्र थे उनके मन में प्रतियोगिता की भावना जग गई और वो इस खेल में रुचि लेने लगे। और मेरा भी काम हो गया कि मेरा भी जो मैं पढ़ाना चाह रही थी उनको वो भी ठीक से पढ़ाने लग गई। इस प्रक्रिया में जो पढ़ाई में कमज़ोर छात्र थे या जो पढ़ना नहीं चाह रहे थे, जो थोड़े शैतान से छात्र होते हैं हर कक्षा में, वैसे छात्र भी इस खेल में रुचि लेने लगे और पढ़ने लगे। मेरा ये खेल 3 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में छात्रों को बोला जाता है, छात्रों को बताया जाता है कि वो विषय को ठीक से ध्यान से ठीक से समझे, पढ़े, देखे और फिर इसको अच्छे से अपने ध्यान में रखें। दूसरे चरण में छात्रों को बोला जाता है कि आंखें बंद करके अब इस विषय को मन की आंखों से देखें, ध्यान दें, फिर से इसको दोहराएं कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझने की कोशिश की, ये सब अपने मन में फिर से दोहराएं, फिर से एक बार वो सारा देखने की कोशिश करें। ये दोनों चरणों के लिए बच्चों को 5-5 मिनट का समय मिलता है। तीसरे चरण में एक एक करके छात्रों से पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, आपका दृष्टिकोण क्या है, इस विषय में आपके दृष्टिकोण क्या है। तो एक एक करके छात्र जवाब देते हैं। जिन छात्रों का जवाब सही होता है उन्हें इनाम दिया जाता है और जिनका जवाब सही नहीं होता है उन्हें पूरी तरह से फिर से अच्छे से समझाया जाता है ताकि वो विषय को अच्छे से समझे। जिन छात्रों को इनाम मिलता है वो इनाम होता है तालियों से शाबाशी, या बोर्ड पे थोड़े से सितारे बना दिए, उनमें बच्चों का नाम लिखा, या कुछ दिनों के लिए बच्चों को मॉनिटर बना दिया क्लास का, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादातर वो बच्चे आगे आएँ, उनको प्रोत्साहित करती हूँ जो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए। इस नवाचार से मैंने पाया कि कक्षा में हर प्रकार के छात्रों की पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ गई। पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ा और छात्र स्कूल भी आने लगे। इस क्रिया को मैं विषय के अंत में दोहराती हूँ, खेलती हूँ उनके साथ। ये क्रिया मैं अंत में करती हूँ, विषय के अंत में, ताकि पहले उनको विषय अच्छे से समझे और बाकी इस खेल से विषय को समझने में अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण उनमें आ जाए। इस क्रिया से बच्चों में अवलोकन करने का कौशल, रिकैप्सुलेशन कौशल, अपनी बात रखने का कौशल, अपना दृष्टिकोण रखने का हौसला, उनकी एकाग्रता, उनका बोलचाल का तरीका, ये सब गुण आते हैं और ये सब गुण बढ़ते भी गए। मैंने ये अपनी कक्षा में पाया है। अपने इस नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा मुझे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मैं हृदय से श्री अरबिंदो सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयास से समस्त भारत के शिक्षकों के प्रयासों को जो उन्होंने सामने लाया और हम जैसे शिक्षकों को संसार के सामने लाकर हम जैसे शिक्षकों को सम्मान दिया। और मैं HDFC बैंक का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस अभियान में श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। अंत में मैं फिर से सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार।
Hello everyone, my name is Shivani Sharma. I am from Government Girls High Secondary School Riyasi in J&K. I have received the National Award from Zero Investment Innovations for Education Initiatives ZIIEI for my innovation. My innovation's name is Rewarding Students for Their Good Deeds. I innovated this idea because I want to inculcate good behavior among students so that their moral as well as behavioral development takes place. To implement this innovation, I made a box called the Box for Best, in which chits are placed with the name and good behavior done by the students, and at the end of the month these chits are counted and students are rewarded with the best student of the class, and also the students are motivated in this way. I have been implementing this innovation since 2 years. My school and students have benefited immensely through this innovation. All the students are motivated and encouraged. They learn the importance of good behavior and character. I am glad that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have given the innovative teachers this opportunity to share our innovative ideas online with you. I am hopeful that we all will work together in improving the quality of education. To know about the other innovative ideas, please like, subscribe ZII YouTube channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गोजर, टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बंजरपति, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। I have received the National Award Zero Investment Innovation for Education Innovations ZIIEI for my innovation नेम इज क्विज कंपटीशन। मैंने जो नेशनल अवार्ड रिसीव किया है फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन का, तो वो मेरा जो उसमें जो टॉपिक था, जो मेरा उसमें था, वो क्विज के बारे में था। यानी क्विज प्रोग्राम हम स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करें और उसके क्या फायदे बच्चों तक पहुंचते हैं। जो ही मैंने यहाँ पे स्कूल पे, अपनी स्कूल में, यानी हर महीने के आखिर पे क्विज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, मुनक्किद किए, तो वहां पर मैंने पेरेंट्स को और कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। जो ही मैंने उनको इन्वॉल्व किया तो उस तरह से पेरेंट्स का वहां पे सपोर्ट मिला बच्चों को, और वहां पर पेरेंट्स की जो अटेंशन थी वो बच्चों की तरफ आई और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह से इस कंपटीशन में देखा, और उनकी शौक जो थी, उनकी जो इंटरेस्ट था, वो इस एजुकेशन की तरफ हुआ। क्योंकि वहाँ जो हमारे स्कूल है, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों को अपने घर का काम करवाते हैं, उनको एजुकेशन के बारे में पता नहीं था। तो अब मैंने पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ाने के लिए मैंने वहाँ पे क्विज प्रोग्राम किए। क्विज प्रोग्राम की वजह से पेरेंट्स को मैंने फ़ोन कॉल पे, लेटर भेज के वहाँ पे, तो उनको बुलाया वहाँ पे हर महीने के आखिर पे। वहाँ पर मैं ये क्विज प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा था। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स आए, कम्युनिटीज मेंबर आए, उन्होंने इससे प्रोग्राम को देखा और उनका जो इंटरेस्ट था और बच्चों को भी इसका सपोर्ट मिला। तो उस तरह से मुझे काफ़ी फायदा हुआ। बच्चों को स्कूल के जो ये बच्चे ड्रॉप आउट होते थे या स्कूल में नहीं आते थे बच्चे, अब उनका जो अटेंडेंस परफॉर्मेंस रही वो भी ठीक रही और ज़्यादातर एनरोलमेंट भी वहाँ पर बढ़ता गया। क्योंकि पहले एनरोलमेंट बिल्कुल कम था, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो अटेंशन नहीं दे रहे थे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। जब मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पे मुनक्किद किए तो वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को शौक से स्कूल भेजना शुरू किया, और इस तरह से अटेंडेंस भी बच्चों की बढ़ती गई, और साथ साथ में बच्चों का जो एनरोलमेंट था वो भी बढ़ता गया।
तो इससे काफी फायदा पहुंचा। तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये मुनाकिद करना प्रोग्राम, फिर इन पेरेंट्स को बुलाना, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाब होता गया और फायदा मंद हुआ, फ्रूटफुल साबित हुआ। तो ये जो प्रोग्राम किए, तो इस प्रोग्राम से काफी फायदा बच्चों को पहुंचा। तो सोसाइटी में भी जो इसका ज्यादातर अब ये जो इस वहाँ पे लोग थे, उन्होंने भी इसको अच्छी तरह से यानी कि मुझे सपोर्ट किया इस प्रोग्राम मुनक्किद करने में। स्कूलों का जो ये कंपटीशन था, इसमें बच्चों को भेजा, बच्चों ने आकर सामने अपने मतलब घरेलू ख्यालात भी जो थे आपने वो भी जाहिर किए। तो उस तरह से बच्चों को क्या हुआ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड हुए। तो और बच्चों को मैंने जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर बच्चा था उसको मैंने अवार्ड दिया। अवार्ड सपोज मैंने 1 स्टार, किसी को 2 स्टार, किसी को नकद पैसे भी 10 रुपये 20 रुपये इस तरह से दिए। तो उनका इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। तो उसमें मुझे पेरेंट्स ने ज्यादा सपोर्ट किया बच्चों को स्कूल भेजने की तरफ, यानी ये बहुत फायदेमंद जो था ये साबित हुआ। तो दूसरा बात यह है कि जो श्री हरभजन सोसाइटी है, इसने हमें इस अवार्ड से नवाजा। जो HDFC बैंक है, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इस अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो इनोवेटिव अवार्ड था, उससे हमें नवाजा। और इस में बाकी साथियों को भी कहूँगा कि जो ZIE के प्रोग्राम्स हैं, अपने YouTube चैनल्स पर उससे सुने और उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि HDFC बैंक और ये श्री हरभजन सोसाइटी ने काफी एजुकेशन को यानी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। यानी इसने काफी फायदा पहुंचा है बच्चों को। तो और उस्तादों को भी इससे काफी ट्रेनिंग्स हमें मिली हैं। और ये भी यहाँ पे उन्होंने टीचरों को सिखाया कि बच्चों को किस तरह से स्कूल की तरफ राग़िब किया जाए, उनका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप किया जाए। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ। तो मैं इस आखिर में ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस ZIE का जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, तो आपको भी काफी फायदा इससे पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। और HDFC बैंक का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने ये प्रोग्राम्स किए और दिल्ली में मुनक्किद किए। उससे हमें काफी जो अवार्ड था, उससे भी हमें भी फायदा पहुंचा, बहुत सारे टीचरों को भी फायदा पहुंचा और बच्चों को भी फायदा पहुंचा। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम मंजू है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुजौपुर, ब्लॉक सरसौल, जनपद कानपुर नगर से हूँ। मुझे मेरे नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरा नवाचार खेल खेल में शिक्षा है, जिसके अंतर्गत सांप सीढ़ी खेल के द्वारा शिक्षा मेरे नवाचार के अंतर्गत आती है, जो कि गणित विषय पर आधारित। खेल खेल में शिक्षा जो टॉपिक है, ये क्यों चुना? तो मैंने देखा कि बच्चे गणित विषय से डरते हैं और बच्चों को गणित विषय बोझिल लगता है और उबाऊ लगता है, और जो समझाई हुई विषय वस्तु या सिखाई हुई विषय वस्तु को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते थे, भूल जाते थे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे खेल में विशेष रुचि रखते हैं, और अगर उनको खेल खिलाया जाए तो उसमें बड़े ही उत्साह से वो भाग लेते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम खेल को ही अपने गणित विषय का शिक्षण का माध्यम बना लें, और मैंने सांप सीढ़ी गेम को पढ़ाई का माध्यम बनाया। और सांप सीढ़ी गेम जो बहुत ही लोकप्रिय है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो इस गेम को मैंने अपने नवाचार के लिए चुना। तो इस नवाचार को बनाने के लिए हमने कच्ची भूमि लिया। हमारे प्रांगण की कच्ची भूमि पर गोबर और गेरू के से पहले रसोइयों ने हमारे लिपाई की। उसके बाद 10x10 का
एक सांप सीढ़ी का एक गेम बनाया, जिसके लिए हमने गेरू, चूना और विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया, जो कि जिसकी अगर कहा जाए प्राइसलेस एक तरीके से था। तो उसके माध्यम से हम बच्चे और सभी शिक्षक मिलकर इसको ज़मीन पर हम लोगों ने बनाया, और बच्चों ने जब इसमें स्वयं इसकी रचना में भाग लिया तो उनका इससे एक विशेष लगाव हो गया। इसको खेल सकते हैं, और इस गेम को खेलने के लिए 2 टीम भी बना के खेल सकते हैं। कुछ बच्चे पासा फेंकेंगे, कुछ बच्चे खेलते हैं। अच्छा, इस नवाचार में रुचिकर बात इस खेल में सांप सीढ़ी के गेम में ये थी कि बच्चे गोटियों के स्थान पर स्वयं खड़े होते थे, और स्वयं खड़े होकर जब गोटियों के स्थान पर खुद चलते थे तो उनको ज़्यादा मज़ा आता था और ज़्यादा कंसंट्रेट रहते थे कि हमें अब कितना आगे बढ़ना है और कितना कौन सा नंबर आ रहा है, उसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखते थे। और जो बच्चे साइड में बैठे होते थे सिर्फ देखने के लिए, वो भी इससे बहुत कुछ सीखते थे। तो ये शुरू में हमने कच्ची भूमि पर बनाया, जो बारिश में और धूप में खराब हो जाता था, इसका रिन्यूअल करना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए हमने बाद में कच्ची भूमि को देखिए, जैसे हमने यहाँ पर रिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो इसको बार बार रिन्यू करना पड़ता था, तो ये थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता था। तो इसके लिए हमने बाद में फ्लेक्सी बनवा लिया। फ्लेक्सी बनवाने से ये क्या हुआ कि फ्लेक्सी को हम कहीं पर भी ले जाकर खेल सकते थे, पेड़ के नीचे, जैसे कि बरामदे में, क्लास में, मीना मंच में, तो इसको कहीं भी ले जाकर इसको आसानी से इस पर खेला जा सकता था। तो अब हम लोग इसी फ्लेक्सी का इस्तेमाल विद्यालय में करते हैं। अच्छा, सांप सीढ़ी गेम खेल के द्वारा विभिन्न प्रकरण, जैसे कि छोटी संख्याएं और कई ब्लॉक्स की संख्याओं को मिलाकर बड़ी संख्या बनाकर उनसे ये पूछना कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान का पता लगाना, संख्याओं का अवरोही क्रम, आरोही क्रम, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, पहाड़े, आयत, वर्ग। हमारे इस नवाचार का परिणाम ये हुआ है कि विद्यालय के प्रति हमारे समाज का जो व्यवहार है वो बदला है, और हमारे विद्यालय में नामांकन प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और जब मैंने इस विद्यालय को ज्वाइन किया था 2012 में, तब विद्यालय की छात्र संख्या 46 थी, जो वर्तमान में 100 से ऊपर हो गई है। विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं, उनके अभिभावक भी विद्यालय की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और वहाँ मुझे खुशी है कि हम नवाचारी शिक्षकों को ZIIEI और HDFC बैंक ने अपने नवाचार को साझा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम दिया, और हम आशा करते हैं कि हम सभी शिक्षक मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक ऊपर लेकर जाएंगे। आप सभी इसी तरह के अन्य नवाचारों को देखने के लिए ZIIEI के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मुलायम सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय बिलगवा, घाटमपुर, कानपुर नगर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ एवं न्याय पंचायत बरीपाल में संकुल शिक्षक हूँ। मुझे मेरे नवाचार भविष्य सृजन के लिए ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम भविष्य सृजन है। मैंने यह नवाचार इसलिए किया जिससे छात्र अपने भविष्य की योजना बना सकें एवं भविष्य में रोजगार के प्रति छात्र तथा शिक्षक दोनों का नज़रिया स्पष्ट हो सके। इस नवाचार को करने के लिए मैंने कक्षा 5 एवं कक्षा 4 के छात्रों का चयन किया तथा प्रत्येक छात्र को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी दी, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, राजनेता आदि। फिर प्रत्येक छात्र को इन विषयों पर विचार करने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय दिया। इसके उपरांत छात्रों से यह जानकारी हासिल की कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वह किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
इस प्रकार कक्षा में एक चार्ट बनाया गया तथा छात्रों के द्वारा चुने गए विषय व्यवसाय को उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दिया गया। इस प्रकार भविष्य के प्रति छात्रों का नज़रिया स्पष्ट हो गया एवं कक्षाध्यापक को भी इसकी जानकारी हो गई कि उनका छात्र भविष्य में क्या बनना चाहता है और क्या व्यवसाय या रोजगार चुनना चाहता है। इस प्रकार मेरे इस नवाचार को भविष्य सृजन मैंने नाम दिया। भविष्य के प्रति छात्रों का नज़रिया अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया एवं इसे मैंने भविष्य सृजन कहा। मैं इस नवाचार को अपने विद्यालय में लगभग 5 वर्षों से कर रहा हूँ। इस नवाचार के द्वारा मेरे विद्यालय के छात्रों को कई प्रकार के लाभ हुए हैं। विद्यालय की छात्र संख्या में वृद्धि हुई है, छात्र उपस्थिति में वृद्धि हुई है, छात्र अधिगम में वृद्धि हुई है, विद्यालय का वातावरण रुचिपूर्ण बना है, शिक्षक और छात्र के मध्य एक गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण हुआ है तथा अध्यापक छात्रों के प्रति उनके व्यवसाय के प्रति अब एक स्पष्ट नज़रिया रखता है। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने नवाचारी शिक्षकों को अपने नवाचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। मैं आशा करता हूं कि हम सभी शिक्षक मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊपर लेके जाएंगे। इन सभी नवाचारों की जानकारी के लिए आप ZIIAI के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा हमारे इनोवेटिव पाठशाला ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद अरविंदो सोसाइटी एंड HDFC। धन्यवाद। थैंक्स।